as we hear the word of God, let us not entertain other thoughts. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो होने पाए हम किसी भी और विचारों को अपने दिमाग में ना लाने Let us दें। not entertain other worldly matters. कोई भी ऐसी दुनिया की चीजों को अपने सोच में ना लेकर Let आए। us not entertain your handphone that you have in your hand. आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी तरफ ध्यान ना दें। Let's not entertain WhatsApp, Facebook this morning. इस समय अपना व्हाट्सएप अपना फेसबुक ना देखें, But let us give our best this morning to लेकिन Jesus अपना Christ. अपना उत्तम प्रभु यीशु मसीह को आज सुबह के समय दें, Because this is the day that the Lord has क्योंकि made. ये दिन है जो यहोवा ने बनाया है। This is the day that the Lord has क्योंकि made. ये दिन है जो यहोवा ने And बनाया let us है। rejoice in the presence of the और आइए Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंदित Oh, I हों। will sing praises to you, मैं Jesus. यहोवा यीशु के लिए आराधना स्तुति I करूंगा। will sing a new song to you, Jesus. मैं यीशु तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा। Oh, I will bless you in every moment of my life, मैं तुझे Jesus. हमेशा अपने जीवन के हर क्षण में तुझे धन्य कहता Because रहूंगा, you have been my rescuer. क्योंकि तू मेरा छुड़ाने वाला ठहरा Oh, है। you have been my redeemer. तू मेरा उद्धारक ठहरा है। Oh, you have been my deliverer. तू मेरा छुड़ाने वाला ठहरा Oh, है। thus far, if Jesus has brought you, may I ask you to lift your hands and shout, अगर अब तक Hallelujah. यीशु ने आपको संभाला है तो मैं चाहता हूँ अपने हाथ उठाकर यीशु को हालेलुया बोलें। Praise the हालेलुया। Lord. Hallelujah. Hallelujah. This morning, as you hear me, इस सुबह के समय जब आप मुझे सुनते हैं, or you may be going through some difficulty, आप इस समय शायद किसी कठिनाई से होकर गुजर or रहे you हैं। may be chased down by many, शायद आपको बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, आप परेशान हैं, and you may have been running over a period of और आप time. शायद किसी परिस्थिति से भाग रहे हैं कुछ समय से, And you may be wondering, how long will I run? और आप ऐसा सोच रहे होंगे मैं कब तक ऐसे भागता रहूंगा। I have no strength to run. मेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है भागने के I लिए, may fall in between. शायद मैं बीच में कहीं गिर And, जाऊंगा, and there is a possibility that the enemy may trample over me. और शायद ऐसी संभवता है कि शायद दुश्मन शत्रु मेरे ऊपर मुझे रौंद देगा। As you are listening to me right now, जब इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, King Pharaoh is after you राजा फिरौन आपके पीछे है with his mighty army. उसकी अद्भुत सेना के साथ, And now you have come to a place where you see Red Sea in front of और you. अब आप ऐसे समय में आ चुके हैं जब आप अपने सामने लाल समुद्र देख रहे And हैं, you have concluded by saying that everything is finished. और आपने अब इस निष्कर्ष पे आप आ गए हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका And है। when you have concluded that everything is finished, let me tell you, Jesus is saying things are not over. जब आप ऐसे निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी खत्म नहीं किया है। Oh, do not conclude the chapter yet. अभी यहाँ पर अपना पाठ खत्म ना कर दें। There are many more chapters to be written. अभी ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो लिखी जानी And है, that comes from the और Lord. वो परमेश्वर यहोवा से आएगी। Hallelujah. 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 If you are hearing me this morning, अगर आज आप सुबह के समय मुझे सुन रहे हैं, let me encourage you मैं आपको उत्साहित करना by चाहता हूँ, saying that Jesus Christ is our rescuer. ये बताकर कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। God is our rescuer. परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। Oh, hallelujah. Hallelujah. Because the deliverer is capable enough to go against the enemy. क्योंकि हमारा जो छुड़ाने वाला है वो योग्य है कि वो हमारे दुश्मन के पीछे Because जाए, the deliverer is capable enough to go against any oppressor. क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला योग्य है कि वो हमारे सताने वाले के पीछे जा And सके, he will fight for you. और वो हमारे लिए लड़ेगा, He will fight for you. वो आपके लिए The लड़ेगा। battle belongs to the Lord. युद्ध परमेश्वर का है। Hallelujah. Hallelujah. You may be going through a difficult situation. शायद आप इस समय बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, Your battle seems to be heavy for you. आपके लिए आपका युद्ध बहुत भारी आपको दिखाई But पड़ता है, let me encourage you this morning. लेकिन आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता God हूँ, shall fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। He is the best deliverer. वो सबसे अच्छा छुड़ाने वाला है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And Hallelujah. as Israelites said, my Redeemer lives. और जैसे इजराइलियों ने कहा हमारा छुड़ाने वाला जीवित May है, I encourage each and every one of you to say with me, my Jesus is alive. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे साथ कहें मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, And he will rescue और me. वो मुझे छुड़ा लेगा, He
will rescue me from that miry clay. वो मुझे उस मिट्टी से दलदल से मुझे छुड़ा लेगा। He will rescue me from that pestilence. वो मुझे उस महामारी से छुड़ा लेगा। He will rescue me from that trap. वो मुझे उस जंजाल से छुड़ा लेगा। He will rescue me from King Pharaoh. वो मुझे फिरौन राजा से छुड़ा He लेगा। will rescue me from that mighty army that is after me. वो मुझे उस प्रबल सेना से छुड़ा लेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Hallelujah. हो। Let me tell you one thing. एक चीज आपको बताना Oh, चाहता हूँ, deliverance won't happen if you have a good annual income. छुड़ौती हमारे जीवन की ऐसे नहीं होगी कि अगर हमारी वार्षिक हमारी जो इनकम है वो बहुत अच्छी है। Deliverance won't happen if you have a luxurious 5 BHK. अगर हमारा बहुत ही आरामदायक 5 कमरों का घर है तब हमारी छुड़ौती नहीं होगी। Or deliverance won't happen if you have 2 master's degree. अगर हमारे पास 2 मास्टर की डिग्री है तब हमारी छुड़ौती नहीं होगी। But deliverance shall come only through one name, and that name is Jesus लेकिन सिर्फ Christ. छुड़ौती एक नाम के द्वारा आएगी और वो नाम है यीशु The मसीह। name that is above all other names. वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है। The name that is powerful enough. वो नाम जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली That है। wonderful name. वो सबसे अद्भुत नाम। Oh, that great name, Jesus, be glorified this वो morning. महान नाम, वो यीशु का नाम आज सुबह के समय महिमा पाए। Jesus Christ is all that you need. सिर्फ यीशु मसीह है जो सब हमें चाहिए है। Jesus Christ is all that you need for your deliverance this सिर्फ morning. यीशु मसीह आज हमारे लिए काफी पर्याप्त है इस And सुबह के if, and समय। if you have not heard this name, Jesus अगर Christ, आपने आज तक ये इस नाम को नहीं सुना है यीशु may के, I urge you to take that powerful name. क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूँ इस सामर्थी नाम को ले And लें। I believe and let me guarantee you that Jesus Christ shall rescue और you. मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लेगा Jesus Christ shall rescue you out of that sin. और परमेश्वर आपको उस पाप से छुड़ा लेगा। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. For God to deliver you, परमेश्वर को आपको छुड़ाने के लिए make sure that you are in Him. ये ध्यान रखें कि आप उसमें हैं। Make sure that you are in Him. आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप उसमें हैं, So that you experience the power of God. ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव कर When सकें। you are in Him, जब आप उसमें होंगे, and when you follow God's will in your life, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पीछा करेंगे, when you understand the power of God in your life, जब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने दिमाग में अपनी बुद्धि में समझ लेंगे, when you give importance to the word of जब God, आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, when you seek His face, जब आप उसके मुख को उसकी दृष्टि लगाएंगे, when you understand His will through prayer, जब आप प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को that देखेंगे, is where God comes in between. तब वो समय है जब परमेश्वर बीच में आ जाता And है He shall rescue और वो you. आपको बचा लेगा। He shall bring you out. वो आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा, Because it is only in the presence of God where you experience joy. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही आप आनंद का अनुभव It is करते only in हैं, the presence of God where you experience His sweet love. क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही आप परमेश्वर के उस प्रेमी प्रेम को अनुभव It करते is only हैं, in the presence of God where you experience the peace of God. क्योंकि उसकी उपस्थिति ही है जहां पर आप परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हैं। If things are not right with you this morning, अगर आज सुबह के समय आपके साथ कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं चल if रही there हैं, is peacelessness in your life, अगर अशांति आपके जीवन में है, let me tell you, Jesus will give you peace. मैं आपसे बताना चाहता हूँ यीशु आपको शांति देगा। All you need to do is that you should run into the presence of बस God. आपको इतना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में भागना है, Oh, cling on to Him परमेश्वर से लिपट जाना है and ask Him to show His grace upon और Him. परमेश्वर से बोलना है, प्रभु तू मुझे अपना अनुग्रह
दिखा And दे। when you are in the presence of God, God shall bless you with His healing and और deliverance. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति Let me हो। tell you one एक thing. बात आपको बताना When चाहता हूँ, God intervenes over your जब situation, परमेश्वर हमारे बीच में एकदम से आ जाता है, the impossible becomes possible. जो असंभव है वो संभव हो जाता है। Praise the Lord. You can run after your friends, your best ones, to do something for you. आप अपने मित्रों के पीछे, आप अपने जो आपके लिए उत्तम है, आप उनके पीछे भाग सकते हैं। You may think that my situation can be handled easily by my best friends. आप शायद सोच सकते हैं कि मेरे प्रिय मित्र के द्वारा मेरी परिस्थितियों का निकास हो जाएगा। My colleagues may help me. मेरे जो साथी हैं शायद वो मेरी मदद कर देंगे। But let me tell you, they may not be successful. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ शायद वो असफल हो जाएं। But there is one God लेकिन एक परमेश्वर है who shall turn away impossible into possibility. जो सारी असंभवता को संभवता में बदल And His देता है, name is Jesus और Christ. उसका नाम यीशु मसीह है। Church, say with me loudly, Jesus Christ. कलीसिया मेरे साथ मिलकर बोले यीशु मसीह। Hallelujah. Hallelujah. There is no word called impossible in God's dictionary. परमेश्वर के शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसका नाम हो असंभव। There is no word called impossible in God's dictionary. परमेश्वर के शब्दकोश में असंभव नाम ही नहीं है। If it is God's will, He will do it for it. अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो पूरा करेगा उसको, No matter what your situation is all चाहे about. परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने If पाए। it is God's will, He will do अगर it. परमेश्वर की इच्छा है तो वो उसे पूरा करेगा। Praise God. And when Hallelujah. you are in the presence of the और Lord, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, God will wipe away your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ Oh, you डालेगा। may be in tears right now, this very second. शायद इस समय भी, इस क्षण में भी आप शायद आंसुओं में As you होंगे। hear me, you may be in tears. शायद जब आप मुझे सुन रहे हैं इस समय भी आप आंसुओं में Even your होंगे। closed one may not be knowing what you are going through. आपके जो सबसे नजदीकी हैं शायद वो भी इस चीज को नहीं जानते होंगे। Your relationship with your husband is not good. शायद आपके पति के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं Your है। relationship with your wife is not going well. शायद आपकी पत्नी के साथ आपका संबंध सही नहीं चल रहा Your है। grown-up children do not respect you. शायद आपके बच्चे, जवान बच्चे आपका आदर नहीं कर रहे Oh, हैं। you have been pressed down from every side and corner. आप हर कोने से दबाए जा चुके हैं, But God will answer your prayers. लेकिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। He will answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना Oh, सुनेगा। that is what we see in Psalm 34, verse 4 and 17. और यही हम भजन संहिता 34 में पाते हैं, 34 का 4 पद और 17 पद। It says that I sought the Lord and He answered me. यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। I sought the Lord. मैं यहोवा के पास गया, I looked up to God मैंने यहोवा की ओर देखा and He answered me. और उसने मेरी सुन ली। Oh, He won't answer you in all that you go through. आप जो सब कुछ जिससे होकर गुजरते हैं शायद वो सब में आपको उत्तर ना But if दे, it is the will of God, He shall answer you. लेकिन अगर वो परमेश्वर की योजना है, इच्छा है तो वो जरूर I उत्तर देगा। sought the Lord and He answered मैं me. यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन He ली delivered me from all my और fears. उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर You दिया। are in fear right now. अभी शायद आप भय में हैं, Or you are in tears right शायद now. अभी इस समय आप आंसुओं में हैं। There is something that is bothering you. कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही Over है। the past years, over the past month, there is something that is really pinching you. पिछले कुछ महीनों से, सालों से कोई चीज आपको चुभ रही है And you are fearful about what is about to happen. और आप डरे हुए हैं कि क्या होने वाला है। But let me tell you, Jesus shall take away your fear. लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यीशु आपके भय को ले लेगा। Seek Him. उसकी खोज करें, Go after Him. उसके पीछा करें, Oh, run to Him. उसके पीछे भागें And He shall deliver और you. वो
आपको जरूर से छुड़ा लेगा। In verse 17 it says, the righteous cry out, 17 पद में लिखा है, धर्मी दुहाई देता है and the Lord hears. और यहोवा सुनता है। The righteous cry out, जब धर्मी दुहाई देता है, and the Lord hears. यहोवा सुनता है He delivers them from all their trouble. और उसको सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता It's है। not written 1, 2, 10 troubles, it's written all their trouble. वहाँ 1, 2, 10 विपत्तियां नहीं लिखी, लेकिन लिखा है सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता God will है। answer your prayers, my dear brother, my dear sister. God is going to answer your मेरे prayers. प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को In the सुनने जा रहा in है। the next few weeks, God is going to do great things in your life. आने वाले कुछ हफ्तों में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य There करने is जा a रहा है। season of refreshing that is about to happen in your एक life. ताजगी का समय आने जा रहा है। God is going to rescue you. परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा God है। is going to bring you out. परमेश्वर आपको बाहर निकालने जा रहा Oh, है। by faith say, Jesus, I receive this word. विश्वास से कहें, यीशु मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. Israelites are having a very hard time working under the kingship of King Pharaoh. इजराइलियों के जीवन में एक बड़ा कठिन समय आया जब वो राजा फिरौन के नीचे काम कर रहे थे। Oh, there arose a new king in Egypt. एकदम से मिस्र में एक नया राजा आ जाता And है he thought that the people of Israel are too powerful now. और उसने ये सोचा कि इजराइल के लोग बहुत ही सामर्थी शक्तिशाली हैं And if a war breaks out, और एकदम से अगर युद्ध छिड़ जाता है Israelites can join hands with their enemies and they can fight against तो us. इजरायली लोग अपने दूसरे मित्रों के साथ मिलकर हमारे विरोध में लड़ सकते हैं। In order to not to happen, ऐसा ना हो इसलिए what he did is that he set taskmasters over Israelites. ऐसा ना हो इस कारण से उसने लोगों को जो है जो काम करने वाले थे उन लोगों को उनके ऊपर रख दिया To afflict them with a heavy burden. जो परिश्रम करवाते थे लोग ताकि इजरायलियों के ऊपर और बोझ आ जाए। And in Exodus chapter 1, 2 and 3 we see that they built storehouses, store cities for Pharaoh. और हम पाते हैं निर्गमन के 1, 2 और 3 अध्याय में कि उन्होंने कैसे वहां पर उन लोगों के लिए एक जगह तैयार करी। They ruthlessly made the people of Israelites work. उन्होंने बहुत ही निर्दयता से इजरायलियों को अपने नीचे काम करने दिया। No mercy was shown upon them. कोई दया इजरायलियों को नहीं दिखाई गई। No work from home allowed. कोई भी घर से काम करने No को नहीं दिया गया। online work allowed. कोई भी ऑनलाइन काम नहीं No कर रहे half-day थे। leave sanctioned. कोई भी आधा दिन का उनको कोई छुट्टी नहीं मिली थी। No casual leave sanctioned. कोई भी आराम वाली छुट्टी नहीं मिली They थी। were allowed, they were made to work day and night. उनको जबरदस्ती काम करने को दिया रात और दिन। Their lives were made bitter. उनकी जिंदगियों को बहुत ही कष्ट दिया। Their lives were made bitter with hard service. उनको बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन बिताना पड़ा उस सेवा के They नीचे। were asked to work in the fields. उनको खेतों में काम करने को बोला They गया। were asked to make bricks. उन लोगों को बोला गया कि वो ईंटें बनाए And they were ruthless against और Israelites. वो बहुत ही निर्दयी थे इजरायलियों के प्रति। And then came a point where the word says that the people of Israelites groaned. और तब एक समय ऐसा आया जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने कहराए, वो रोए। The people of Israel groaned because of their slavery. और परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग इस बंधुआई के कारण वो लोग रोए And they cried for help. और उन्होंने परमेश्वर के लिए दया के लिए रोए। The Israelites are in a desperate situation to see something happening. इजरायली लोग इस समय ऐसी परिस्थिति में है कि वो कुछ देखना चाहते They हैं। want to see a redemption taking place. वो चाहते हैं कि कोई छुटकारा वो देख सकें। They are desperate to see a deliverer coming and rescuing them. वो चाहते हैं कि कोई छुड़ाने वाला आए और उनको छुड़ा कर ले जाए। And in verse 24 it says, and God heard their groaning. और वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उनके करहाने को सुन लिया And God heard their groaning. और परमेश्वर ने
उनके रोने को सुन लिया। Let me tell you, my dear brother, my dear sister, मैं मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन ये बताना चाहता हूँ, God has heard you. परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। God has heard your inner pain. परमेश्वर ने आपके दिल के अंदर के दर्द को देख लिया है। God is watching over your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं की ओर देख रहा है। Praise the Lord. He is Hallelujah. not far away from वो you. आपसे दूर नहीं है, But God has heard your groaning this लेकिन morning. परमेश्वर ने आपके कहराने को सुन लिया है आज Believe सुबह me, के समय। believe me, God is- विश्वास करें, विश्वास करें, God is next to you this morning. परमेश्वर आपके पीछे ही है आज And He सुबह। is watching over your और situation. वो आपकी परिस्थितियों की ओर देख रहा And the है। word says, and God remembered His covenant. और वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। And God remembered His covenant. परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण In किया। Exodus chapter 3 verse 7, जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 7वें पद में आते it हैं, says that I have surely seen their affliction. उनके दुख को मैंने निश्चय देखा है। I have surely seen their affliction of my people मैंने अपने लोगों के दुख को निश्चय देखा है, who are in Egypt जो मिस्र में है, and have heard their और cry मैंने उनके रोने को सुन लिया है, because of their taskmasters. क्योंकि उनके परिश्रम देने वाले लोगों के कारण। You are under affliction this morning. आप आज सुबह के समय किसी पीड़ा में हैं, But God has heard your लेकिन cry. परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। Oh, the taskmaster is heavy upon you. जो परिश्रम करने वाला है वो आपके ऊपर भारी है, But let me tell you, God is saying, I promise you that I will bring you out of this लेकिन situation. परमेश्वर ये कहता है मैंने ठान ली है कि मैं तुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल के Exodus chapter लाऊंगा। 3 verse 17, God is saying, I promise you that I will bring you out. निर्गमन 3 के 17 में लिखा है मैंने ठान ली है कि मैं तुझको इस परिस्थिति से निकाल God लाऊंगा। is concerned about your suffering. परमेश्वर आपकी परेशानियों के लिए चिंतित है। God who says, I am who I am is concerned about you. परमेश्वर यहोवा जो कहता है मैं वो हूँ सो हूँ, वो आपकी चिंता करता है। God is concerned about your slavery. परमेश्वर आपकी बंधुआई की चिंता करता God है। is concerned about your groaning. परमेश्वर आपके रोने के लिए चिंतित है। God is saying to you this morning that I remember the covenant I made with you. परमेश्वर आपसे कहता है कि मुझे आज भी स्मरण है जो वाचा मैंने तेरे साथ I बांधी थी। remember the promise I made with you. मुझे याद है जो मैंने तेरे साथ वादा किया I था। have not forgotten. मैं तुझे भूला नहीं हूँ, I remember. मुझे याद I है, have seen your affliction. मैंने तेरी पीड़ा देखी है। Praise the Lord. Time has come for you to move on, church. समय आ गया है कलीसिया की हमें आगे बढ़ना है। Oh, hallelujah. He is Hallelujah. going to answer your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। The Egyptian that you see today, may you never see it जो again. मिस्रियों को आज आप देखते हैं होने पाए आप कभी उनको दोबारा ना The देखें। Egyptian that you see today, may you never see it again. जो मिस्रियों को आज आप देखते हैं होने पाए आप कभी Let दोबारा it ना happen देखें। in Jesus' name. ऐसा होने पाए यीशु के नाम Let से। that Egyptian be away from you in Jesus' वो name. मिस्री लोग आपसे दूर हो जाएं यीशु के नाम से। Let King Pharaoh be away from you in Jesus' name. वो राजा फिरौन आपसे दूर हो जाए यीशु के नाम Let that से। mighty army that is against you be away in Jesus' name. जो महान सेना आपके पीछे पड़ी है वो दूर हो जाए यीशु के नाम Let से। that affliction be away from you in Jesus' name. वो पीड़ा आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से। Let you experience deliverance in Jesus' name. होने पाए आप परमेश्वर के छुटकारे को अनुभव करें यीशु के नाम से। May you experience that powerful hand of God this morning in Jesus' होने name. पाए परमेश्वर के सामर्थी हाथ को आज सुबह आप अनुभव करें यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe? Do you believe that Jesus is about to do something क्या आप this morning? विश्वास करते हैं कि आज सुबह परमेश्वर कुछ करने जा रहा है? Praise the Lord. God shall Hallelujah. answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने पाए। Not only does He answer your prayers, सिर्फ वो प्रार्थनाओं को सुनता ही नहीं है, but He redeems you. लेकिन वो आपको छुड़ा भी लेता He है। delivers you from all your troubles. वो आपके सारी विपत्तियों से आपको छुड़ा लेता है। Troubles are part of life.
जो विपत्तियां हैं, संकट है, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। In this Christian journey, you are supposed to bear that cross. मसीही इस यात्रा में, हमारे जीवन में हमको इस क्रूस को सहना है। There are times where you may see some stormy waves hitting you. कभी कभी ऐसा जीवन में समय आएगा जब आपको लगेगा कि ये लहरें आपको छू के निकल रही हैं। But let me tell you one thing. लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, You are there because Jesus is there. आप उधर हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Oh, the stormy waves will not go over you. वो जो तूफानी लहरें हैं वो आपके ऊपर से होके नहीं निकल Because the जाएंगी, captain of this ship is Jesus क्योंकि Christ. उस नाव का कप्तान यीशु मसीह Oh, है। you are not alone on that boat. आप उस नाव में अकेले नहीं You are हैं। not rowing that boat आप alone. अपने आप उस नाव को नहीं चला रहे You हैं। have the best captain. आपके पास सबसे उत्तम कप्तान You है। have the best experienced captain. आपके पास सबसे उत्तीर्ण कप्तान है And he has control over that boat. और उसको नियंत्रण है उस नाव के ऊपर। So let me tell you, इसलिए बताना चाहता let हूँ, troubles be part of your life. होने पाए आपके जीवन की जो संकट है वो But- आपके जीवन का हिस्सा But बन God जाए, will bring you out of that trouble. लेकिन परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Oh, King Nebuchadnezzar was so happy to see a big image of gold. नबूकदनेस्सर राजा एक बड़ी सोने की मूर्ति को देखकर बड़ा खुश था। He was so happी to see that image made of gold, 60 cubits high, and the breadth was 6 cubits. वो सोने की मूर्ति देखकर नबूकद राजा जो राजा था वो बहुत खुश था, और वो मूर्ति 60 हाथ और 6 हाथ की उसकी चौड़ाई और लंबाई थी। And a decree is being passed that whoever does not fall down and worship the image shall be immediately be cast down into the fiery furnace. और ऐसा घोषित किया गया कि जो कोई भी उस मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा। But amongst all of them there are 3 officers. लेकिन उन सबों के बीच में वहां एक 3 अधिकारी There लोग are हैं। 3 officers, Shadrach, Meshach and Abednego, वहां पर 3 अधिकारी हैं जिनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, who are not even interested to know what is happening. जिनको ये रुचि भी नहीं थी जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा They है। are not interested to even know what this new rule is all about. उनको ये रुचि नहीं थी जानने के लिए कि वहां पर एक नई चीज क्या हो रही है। They are not even interested to understand what this king has said. ये राजा क्या बोलना चाह रहा है, क्या घोषित किया है, उसको सुनने के लिए इन लोगों को रुचि नहीं है। Because you know why they are not interested? मैं बताऊं क्यों वो लोग रुचि नहीं रख Because रहे थे? they know that they serve a king who is called the King of Kings. क्योंकि वो जानते थे कि वो उस राजा की सेवा करते हैं जो राजाओं का राजा है। They know that King Nebuchadnezzar is mere dust. क्योंकि वो जानते थे कि राजा जो है वो सिर्फ एक मिट्टी है। His kingdom will last for many other, maybe for the next 50 years. शायद उसका राज्य जो है वो अगले 50 साल के लिए होगा। But Shadrach, Meshach and Abednego are well aware of the fact that they serve a king whose kingdom will never be shaken. लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये जानते थे कि जिस राजा की वो सेवा कर रहे हैं उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। And they know that they are serving the most powerful king. और वो जानते थे कि वो सबसे सामर्थी राजा की सेवा कर रहे हैं। And all of a sudden there is a telegram that is being sent to King Nebuchadnezzar. और एक टेलीग्राम जो है नबूकदनेस्सर राजा को भेजा The गया। message says that you had passed a decree that all need to worship this image, but here there are 3 officers who are not interested. लेकिन फिर नबूकदनेस्सर राजा को एक ऐलान जो उसने किया है उसके बारे में उसको पत्र भेजा गया कि ये 3 ऐसे लोग हैं जो इसके मूर्ति के सामने झुकना नहीं चाहते। In Daniel chapter 3 verse 13 we see that then Nebuchadnezzar in furious rage
commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. और तब हम पाते हैं कि डैनियल के 3रे अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि क्रोध में आकर राजा ने ये घोषित किया कि इन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया जाए। And Nebuchadnezzar is asking a question. और यहाँ नबूकदनेस्सर राजा एक प्रश्न पूछ रहा है, Is it true what I have heard? क्या ये सच है जो मैंने सुना है? Is it true that you do not want to serve my God, small letter g? क्या ये सच है कि तू मेरे परमेश्वर के सामने झुकना नहीं चाहता, छोटा जी? I love the reply that these 3 young men gave. मुझे बहुत अच्छा लगा जो जवाब उन लोगों ने दिया। You know what the reply is all about? आपको पता है उन लोगों ने क्या जवाब दिया? They are saying, oh Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. उन्होंने बोला कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हमको तुझे इस विषय में जवाब नहीं देना है। And even if we need to bow down, our God, capital G, whom we serve, is able to deliver us. और अगर हमको इससे होकर गुजरना भी पड़े तो हमें पता है हमारा परमेश्वर, वो बड़ा जी जो है, वो हमें छुड़ा लेगा। The God that King Nebuchadnezzar is serving is a small letter G God. जो नबूकदनेस्सर राजा जिसकी आराधना करता था, वो राजा का जो जी है, गॉड का जो जी है, वो छोटा है। But the God that Shadrach, Meshach, and Abednego is serving is the capital G God. लेकिन जिस परमेश्वर की आराधना शद्रक, मेशक, अबेदनगो कर रहे थे, वो अक्षर जी जो है वो बड़ा है। And he shall deliver us from the burning fiery furnace. और वो हमको उस आग की भट्टी से छुड़ा लेगा। And he will deliver us from your hand. और वो हमको तेरे हाथों से भी छुड़ा लेगा। But if not, be it known to you that, लेकिन अगर वो नहीं भी छुड़ाए तो, O king, that we serve not your God or worship the golden image. लेकिन मैं जो हूँ उस मूर्ति, जो सोने की मूर्ति है, उसके सामने आराधना नहीं करूंगा। Whatever may happen, we are not interested to bow down before this image. चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें रुचि नहीं है इस मूर्ति के सामने Let झुकने me के tell लिए। you one thing that the Lord taught me. एक चीज बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे The सिखाई। worldly fire has no power over your body. दुनिया की जो आग है उसकी शक्ति इतनी नहीं है कि वो आपके शरीर को असर करे। The worldly fire has no power to bring you down. जो दुनिया की जो आग है उसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो आपको नीचे ले आए। The worldly fire has no power to burn you down. जो दुनिया की जो आग है उसके पास वो ताकत नहीं है कि वो आपको जला दे। And even if the worldly fire has power to burn your worldly body, अगर आपके शारीरिक शरीर को अगर दुनिया की जो आग है वो जला भी देती है तो, this worldly fire has no power or authority over your spiritual fire. लेकिन इस जो दुनिया की आग है इसको अधिकार नहीं है कि वो आपकी आत्मा की आग को असर कर सके। This worldly fire has no authority over the spiritual fire that you have here. आपके अंदर जो आत्मिक आग है तो ये शारीरिक आग उसको असर नहीं कर सकती। Because my God will protect you. क्योंकि परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपको बचा My लेगा। God will protect you from the deadly pestilence. मेरा परमेश्वर आपको उस महामारी से बचा लेगा। My God shall protect you from the arrows that fly. जो तीर उड़ते हैं परमेश्वर हमारा उससे आपको बचा लेगा। 1,000 may fall at your side. 1000 आपकी ओर गिरेंगे, 10,000 may fall at your right side. 10,000 आपकी दाहिनी ओर But गिरेंगे। let me tell you from the word, it shall never come near you. लेकिन परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ वो आपके निकट Oh, नहीं say आएंगे। with me, this shall never come near to me. मेरे साथ कहें, ये मेरे निकट नहीं आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego is still alive. जो परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो का है वो आज भी जीवित है। And the God who rescued these 3 young men is able enough to rescue you this और morning. परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने इन 3 जवान लोगों को छुड़ा लिया,
वो आज हमें भी छुड़ा सकता है। Believe me that God मुझे- is about to do something in your मुझे life. विश्वास करे, मेरे साथ विश्वास करे, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर The सकता है। Egyptian that you see today, may you never see it जो again. मिस्रियों को आज आप देखते हैं, आप उनको दोबारा नहीं देखेंगे। Oh, the fourth man is there in midst of वो you. चौथा व्यक्ति आपके बीच में उपस्थित Oh, है। you are being thrown into that fiery furnace. आप उस धधकती हुई आग में डाल दिए गए हैं, But that fire will not harm you. लेकिन वो आग आपको नहीं जलाएगी। In Jesus' name. यीशु के नाम से। You know why? पता है क्यों? Because the fourth person is already there. क्योंकि चौथा व्यक्ति वहां पर पहले से ही And है, he shall uphold you with his mighty hand. और वो अपने अद्भुत हाथों से आपको उठा लेगा। Under his wings we are covered. वो अपने पंखों के नीचे हमें छिपा लेगा। Under his shelter we have taken refuge. उसके शरण के नीचे, उसके पंखों के नीचे हमने शरण ली है। Nothing will happen. ऐसा कुछ भी नहीं होगा। Oh, believe nothing will happen. विश्वास करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, Oh, because Jesus is the winner. क्योंकि यीशु मसीह विजयी है। Satan is the loser. शैतान हारा हुआ है। Oh, the battle belongs to the Lord. युद्ध परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus, we bless you. परमेश्वर हम तेरी Oh, आराधना we करते thank हैं। you that you are about to do something in our life. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप कुछ करने जा रहे Oh, you हैं। are going to answer our prayer. परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना सुनने जा Oh, रहे हैं। you have rescued us. आपने हमें छुड़ा लिया है। Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And at the same time, और फिर उसी ही समय में let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God shall carry your burden. परमेश्वर आपके बोझ को ले लेगा। God is there to carry what you're going through. आप जिस समय से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसे ले लेगा। Oh, you are unable to walk. आप शायद आपको कठिनाई हो रही है Oh, चलने में। life has become so difficult because of the burden that you have. आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हो चुकी हैं क्योंकि उस बोझ के कारण आप चल नहीं पा रहे हैं। The load is so heavy that you have no strength to walk. वो बोझ बहुत भारी है कि आपके पास ताकत नहीं है चलने के The लिए। load is so heavy that you can't even pray. वो बोझ इतना भारी है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। The load is so heavy that as you close your eyes, tears start falling. वो बोझ इतना ज्यादा भारी है कि आपके आंसू निकलने लगते Oh, हैं। you have nothing. आपके पास कुछ नहीं है। You feel everything is empty. आपको लगता है सब कुछ खाली हो चुका है। You think that I can't move forward. आपको लगता है आप आगे नहीं चल But सकते हैं। let me tell you from the word of the Lord. लेकिन परमेश्वर के वचन से बताना Oh, चाहता in हूँ, 1 Peter chapter 5 verse 7. पहले पत्रस 5:7 पद में ऐसा The लिखा है। word says for you this morning. परमेश्वर का वचन आपसे ऐसे कहता Oh, है, cast all your anxiety upon me. अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे। Cast all your burden upon me. अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। Cast all your tension upon me. अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे। Cast all your disease upon me. अपनी सारी बीमारी को मेरे ऊपर डाल दे। Cast all your issues upon me. अपने सारे बातों को मेरे ऊपर डाल दे। Cast all your financial instability upon me. मैं अपने सारे आर्थिक परिस्थितियों को परमेश्वर के ऊपर I डाल दे। will take care of it. मैं तेरा ध्यान रखूंगा। I am there to take care of it. मैं वहां हूं कि मैं उस चीज का ध्यान I रखूं। am the best take carer. मैं सबसे अच्छा देखभाल करने I वाला am हूं। the best take carer. मैं सबसे अच्छा देखभाल करने I वाला know हूं। what to do for you. मुझे पता है मुझे क्या करना है तेरे I लिए, know what to do so that you feel that the burden is no more. क्योंकि मैं जानता हूं मुझे तेरे लिए क्या करना है ताकि तेरा बोझ ना रहे। My dear sister, Jesus is speaking to you this morning. मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर आपसे कह रहा है आज सुबह, Do not feel that you are alone. ऐसा मत सोचें कि आप अकेले हैं। Your tears are precious in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में आपके आंसू बहुमूल्य Oh, हैं। God shall answer you. परमेश्वर आपको जरूर से उत्तर Oh, देगा। your burden is so heavy. आपका बोझ बहुत भारी है। Oh, you are unable to share your burden. आप अपना बोझ किसी से बांटने के लिए आपको Even मुश्किल your है।
family members are least interested about you. आपके परिवार को जानने के लिए कोई रुचि नहीं But the है, Lord is speaking to you this लेकिन morning. परमेश्वर आज सुबह आपसे कह The रहा है, Lord is saying, cast your anxiety upon me. परमेश्वर कह रहा है अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे, I shall handle it. मैं उस सब चीज को संभाल I लूंगा। am the best experienced God. मैं सबसे अच्छा अनुभवी एक परमेश्वर हूँ, I know what is best for you. मुझे पता है तेरे लिए उत्तम क्या है। Jesus, hallelujah, Yeshu, hallelujah. Yeshu. May the people of Yeshu. God experience होने पाए- freedom in Jesus' होने name. पाए परमेश्वर के लोग आजादी को अनुभव करें। Praise the Lord. We see about a person named Bartimaeus. हम बर्तिमाई के बारे में पढ़ते हैं, In Mark chapter 10, 46 following, we know the story. हम 44 से आगे हम मरकुस के 10 में पढ़ते हैं। Oh, Bartimaeus, son of Timaeus, जो बर्तुमाई था तिमायस का बेटा, a blind person and also a beggar. वो एक अंधा था और साथ ही साथ वो एक भिखारी भी था। I understand that he had two different type of burden. मैं यहाँ समझ पाता हूँ कि उसके पास 2 प्रकार के बोझ थे। First burden, he is blind from birth. सबसे पहला बोझ उसके जीवन में ये था कि वो बचपन से ही अंधा था, Oh, second burden, begging since childhood. और दूसरा बोझ उसके जीवन में ये था कि वो अपने जीवन में भीख मांगता था। Every day morning, he's been helped by somebody so that he can go to the roadside, so that he can sit over there and start begging. और हर सुबह वे उठकर जो है भीख मांगने के लिए कोई उसको लेकर जाता था ताकि वो भीख मांगे, And by evening, there is someone to bring him back to the home. और शाम के समय तक कोई उसको वापस उसके घर छोड़ देता था। Oh, he may be wondering, when will that day come when I can see others? वो ये सोचता था कि कब ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं किसी दूसरे को देखूंगा। He is wondering, when can I see my family? वो ये सोचता था कि मैं अपने परिवार को कब देखूंगा। He is wondering, when I, Bartimaeus, can see myself. वो ये सोचता था कि मैं बर्तिमाई अपने आप को ही कैसे He देखूंगा। is wondering, when can I see this beautiful creation? मैं परमेश्वर की सुंदर सृष्टि कब देखूंगा। Oh, but a day came. लेकिन फिर एक दिन आता Oh, है, he's been blind since वो childhood. बचपन से ही अंधा था, He is begging since वो childhood. बचपन से ही भीख मांगता There था। may be times when people said something bad on his face because he's begging. कई बार ऐसा हुआ होगा उसके मुंह में लोगों ने कुछ बुरी बात उसके लिए बोल There दी may होगी। be times where he was sitting on that roadside and he was crying because of his profession. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि सड़क के किनारे बैठकर वो रोता होगा वो काम जो वो करता There था। may be times he did not even get a coin. कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि उसको एक सिक्का भी नहीं He मिला। had this burden. उसके जीवन में एक बोझ था, But that day came. लेकिन फिर एक दिन आया। Oh, the word says that he heard that Jesus of Nazareth is passing उसने by. सुना, वचन में लिखा है उसने सुना कि यीशु नासरी वहां से गुजर रहा Oh, है। he heard that Jesus of Nazareth is passing by. उसने ये सुना कि परमेश्वर यीशु नासरी वहां से गुजर You रहा know है। what he did? पता है उसने क्या किया? Oh, he started to shout. वो पता है उसने क्या किया? वो चिल्लाने लगा। Oh, he started to वो shout. चिल्लाने लगा। People of God, shout. परमेश्वर के लोगों आए चिल्लाएं। Oh, shout to God. परमेश्वर की ओर चिल्लाएं। Oh, shout and say, Jesus, have mercy on me. चिल्लाकर परमेश्वर से बोले, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। Oh, Bartimaeus started to shout and say, Jesus, son of David, have mercy on me. बर्तिमाई चिल्लाने लगा और कहने लगा, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया Oh, कर। the people there started to scold him, saying that better you keep quiet. लोग उसको वहां पर डांट कर कहने लगे, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू चुप रहे। But he did not remain silent. लेकिन वो चुप नहीं रहा। He did not remain वो silent. चुप नहीं रहा। Church, do not remain silent. कलीसिया चुपचाप ना रहे। My dear brother, my dear sister,
sister, do not remain मेरे silent. प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, चुप ना रहे। Oh, people may try to press you down. शायद लोग आपको दबाने की कोशिश But करेंगे, the time has come where Jesus is standing next to you. लेकिन ऐसा समय आ रहा है क्योंकि यीशु आपके साथ में खड़ा है। Jesus, hallelujah. यीशु, Jesus, have mercy upon me. यीशु मुझ पर दया कर। Hallelujah. हालेलुया। And the word says that the Lord heard his shout. और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसके चिल्लाने को सुन लिया, And Jesus called him, Bartimaeus, you come और over here. परमेश्वर ने बर्तिमाई को बुलाया और कहा तू यहाँ आ। Oh, Jesus already knew what he was going through. यीशु को पहले से पता था कि वो किस समय से गुजर रहा है। Jesus knew his heart's desire. परमेश्वर उसकी दिल की इच्छा को जानता था। Jesus knew that he was crying for many years. यीशु जानता था कि वो कई सालों से रो रहा है। Jesus knew that he was been begging since childhood. यीशु जानता था कि वो अपने बचपन से भीख मांग रहा Oh, है। your situation is similar to Bartimaeus. शायद आपकी परिस्थिति आज बर्तिमाई के समान है। Oh, your situation is similar to the Israelites. शायद आपकी परिस्थिति आज इजराइलियों के समान Oh, है। the taskmaster is heavy upon you. जो परिश्रम देने वाले लोग हैं वो शायद आपके ऊपर भारी हैं। Oh, people don't value you. पर लोग आपको आपकी कीमत नहीं समझते। You have no position in the society. आपकी कोई समाज में कोई आपका स्तर नहीं है। But Jesus is calling you. लेकिन यीशु आपको बुला रहा है। Run to him. यीशु के पास दौड़े चले Run जाएं। to him. यीशु के पास दौड़े चले Oh, जाएं। we see that Bartimaeus took off his clothes and ran to Jesus. वचन में लिखा है बर्तिमाई ने अपने कपड़े गिराए और वो परमेश्वर के पास भाग He गया। has not seen Jesus. उसने यीशु को नहीं देखा था। He has only heard about Jesus. उसने सिर्फ यीशु के बारे में सुना था। But we are so privileged that we have heard and we have seen Jesus in our life. लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने यीशु को सुना है और उसको अनुभव किया है। Oh, what a blessed day we have to know Jesus. ओ कितना धन्य दिन है कि हम यीशु को जानते Oh हैं। God, Jesus is asking to Bartimaeus, what shall I do for you? पर मैं यीशु ने बर्तिमाई से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? What shall I do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? Oh, I have seen your affliction. मैंने तेरी पीड़ा देखी है। Oh, I promise you that I will bring you out. मैंने वादा ठान लिया है कि मैं तुझे इससे बाहर निकाल Jesus is लूंगा। speaking to you this morning. यीशु आज सुबह आपसे बात What कर रहा shall I है। do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? Church, God is speaking to you. कलीसिया परमेश्वर हमसे बात What कर रही shall I है। do for you? मैं तेरे लिए क्या करूं? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And if you can say what you are going through, let me guarantee you that God will open a new door for you. अगर आप परमेश्वर को बता देंगे कि आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक द्वार खोल देगा। God will open a door that no man can shut it. परमेश्वर आपके लिए ऐसा द्वार खोलेगा जो कोई मनुष्य बंद नहीं A कर door पाएगा। that is wide enough for you to run in and come out. ऐसा द्वार परमेश्वर खोलेगा जहां भाग कर जा सकते हैं, वापस Oh, आ he सकते has हैं। the keys. उसके पास कुंजी है। He has the keys. उसके पास कुंजी And है। let me tell you, enemy has no power or authority over your मैं situation. बताना चाहता हूँ शैतान को, Rectum दुश्मन को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Declare it in Jesus' name that Satan, you have no authority over me. घोषणा करें यीशु के नाम से, शैतान तेरा कोई मुझ पर अधिकार Oh, नहीं you है। are no one to bother me. तू कोई नहीं होता मुझे Say परेशान it करने in वाला। Jesus' name. बोल दे यीशु के नाम And I से। believe that God shall do above all that you can ask and मैं imagine. विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी सोच और समझ से बढ़कर काम We are करेगा। not losers. हम हारे हुए नहीं हैं। We won't lose the battle. हम इस युद्ध को हारेंगे नहीं। Oh, we are more than हम conquerors. जैवन से भी Oh, बढ़कर हैं। say with me, we are more than conquerors. मेरे साथ कहें हम जैवन से भी बढ़कर हैं। Hallelujah. हालेलुया। The battle belongs to the युद्ध Lord. परमेश्वर का है, Cling on to Him.
उससे लिपट लें। He is there to answer your prayers. वो वहां पर है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के Dear लिए। child of God, वह मेरे परमेश्वर के बच्चों, God is with you. यीशु आपके साथ है। No matter your parents are away from you. शायद आपके माता पिता आपसे दूर हैं। No matter your classmates are away from you. शायद आपके साथ पढ़ने वाले आपसे दूर हैं। Dear child, let me tell you that Jesus is with you. लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। Dear family members, प्रिय परिवार के oh, लोगों, let me encourage you by saying आपको that उत्साहित करना चाहता हूँ in ये midst बोलकर, of your आपकी situation, परिस्थितियों के बीच में can you surrender yourselves as a family and say to Jesus, please come and take control over क्या आप us. पारिवारिक रूप से परमेश्वर के सामने समर्पण कर कर कह सकते हैं, परमेश्वर तू आ और मेरे ऊपर नियंत्रण ले ले। Because the Egyptian that you see today, may you never see it tomorrow. क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो वो तुम कल नहीं देखोगे। Jesus, धन्यवाद। shall we all close our eyes? धन्यवाद। आइए हम क्या अपनी आंखों को बंद कर Oh, सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. हम सब लोग प्रार्थना करेंगे. Let us all close our eyes and look to the Lord in prayer. क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, प्रार्थना में चल सकते Start हैं। praying with me. मेरे साथ प्रार्थना करना Start शुरू praying with करें। me, church. मेरे साथ प्रार्थना करना शुरू Do करें। not कलीसिया, remain silent this चुपचाप morning. ना बैठे आज सुबह के Do समय, not remain silent. चुपचाप ना बैठे आज। Take authority in Jesus' name. यीशु के नाम से अधिकारों को ले ले। Take authority in Jesus' name. यीशु के नाम से अधिकारों को God ले ले। has given you the authority to trample over scorpions. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं कि आप बिच्छुओं को रौंद God सकें। has given authority to trample over snakes. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप सांप को कुचल सकें। In Jesus' name. यीशु के नाम We से break every bondages in हम Jesus' सारे name. बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते In हैं। Jesus' name, let you experience freedom. यीशु के नाम से होने पाए आप आजादी अनुभव करें। In Jesus' name, may you experience freedom. यीशु के नाम से आप आजादी अनुभव करें। In Jesus' name, Satan, you have no authority. यीशु के नाम से शैतान तुझे कोई अधिकार नहीं है।